ये देखिए, ये फतेहपुर सीकरी, ये फतेहपुर है, सीकरी अलग है। ये फतेहपुर में आई, ये किला बना हुआ है, ये 450 साल पुराना है, ताजमहल से 100 साल पहले। হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। আমরা এই যে ভাই বোনা এখন রেডি হয়ে গেছি, ভাই বোনা না, আমরা সবাই মিলেই রেডি হয়েছি। এখন আমরা যাব ফতেহপুর সিকরিতে। আমরা এখন ভরতপুরে আছি, মানে রাজস্থানের ইস্টার্ন রাজস্থান, ঠিক আছে, এখানে আছি আমরা। এখন সকাল কটা বাজে? এখন সকাল 9:40 বাজে। আমরা এখন এখান থেকে বেরোচ্ছি, দেখা যাক কতক্ষণে আমরা ফতেহপুর সিকরিতে এন্ট্রি করি। ঠিক আছে, চলো যাই, তোমাদেরকেও দেখাতে থাকি আস্তে আস্তে। এখন আমরা ভরতপুরে আছি। এই যে আমরা যেই হোটেলটা ছিলাম, ওই হোটেলটা এটা। এত কুয়াশা না, এখনো পর্যন্ত কিছু, এখন সকাল 10টা বাজে, এখনো পর্যন্ত কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, পুরো কুয়াশায় পুরো ভরে আছে। এই যে কথা বলছি না, কথাটাও বলছি, পুরো মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, এত ঠান্ডা। আর আমার তো পুরো গলা অনেক দিন থেকে বসে গেছে, কথা শুনলেই তোমরা বুঝতে পারবে। এখন আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব, বেরিয়ে ফতেহপুর সিকরির দিকে যাব। এই যে আমাদের হোটেলের ভিউটা দেখাচ্ছিল, আর কুয়াশাটা দেখো কেমন কুয়াশা হয়েছে। আর এটা বাইরের মেন রোড, মেন রোডটাই দেখো। মেন রোড পুরো কুয়াশায় ভরা, চতুর্দিকে কুয়াশায় ভরা। চলো আমরা তাহলে এখন যাই আর তোমাদেরকে দেখাতে থাকি, ঠিক আছে? বেরিয়ে পড়েছে, আর কুয়াশাটা দেখো, পুরো রাস্তা ভরা কুয়াশা। তাও এখন ফতেহপুর সিকরিতে আমরা এন্ট্রি করছি, বাট কুয়াশাটা একবার দেখো তোমরা। একটা ফটো আসবে না, ভিডিও আসবে না, কিচ্ছু আসবে না। চলো আসবে না, তুমি চলো না, পিছনে দেখা যাচ্ছে না, সামনে চলো, বাঁদিকে জন্য পুরো বানানো। কি কুয়াশায় পুরো ভরা। ये पार्किंग है गाड़ी का, 100 रुपये का पार्किंग लगता है यहाँ खड़ी करोगे। यहाँ से ऑटो और बस मिलता है, उसका किराया है 10 जाना 10 आने का। कितने लोग हैं आप? रखो रखो ओदिके चलो। आप चाहें ये गाड़ी आपका। কুয়াশাটা একবার দেখো শুধু, ফতেহপুর সিকরির কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। সিকরিতে যদি কেউ আসো, এখানে আমাদের জানি না ইউপির গাড়ি এখানে এন্ট্রি নিচ্ছে নাকি, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের গাড়ি এখানে ঢুকতে দিচ্ছে না। তো আমাদের এখানে রাখতে হয়েছে, এখানে গাড়ি রেখে এখানে বাসে করে যেতে হবে 1.5 কিলোমিটার এখান থেকে। আমরা এখন বাস ধরবো বলে যাচ্ছি। কুয়াশাতে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, দেখো। क्या क्या है बताइए? हाँ, आपको पूरा बताऊंगा, ये तो पूरा स्पेन करके आपको बताऊंगा, ये तो सर को बता रहा हूँ। हाँ तो बताइए ना। मंदिर गए, यहाँ मंदिर है, वहाँ पर भी सोने का चक्कर चढ़ाया उन्होंने। सोने के चक्कर चढ़ाने के बाद में उन्होंने मन्नत मांगा, उनका मन्नत वहाँ पर रहे कुछ दिन। वहाँ पर कोई उनको सपना भी हुआ कि आप कहीं भी चले जाइए। जोर से बोलिए ना। हाँ जी, आपको स्पेन करके बाद में आप আমরা বাস ধরবো, এখন টিকিট কাটতে হবে, 30 টাকা করে টিকিট। এইখানে বাসের টিকিট কাটছে, 30 টাকা করে পার হেড। এখন বাসে যাচ্ছি, প্রচন্ড ঠান্ডা, ঠান্ডায় পুরো পাওয়া হয়েছে, আর কুয়াশা, ঠান্ডা আর কুয়াশা। বাস থেকে যে ভিউটা দেখা যাচ্ছে, এই দেখো ফতেহপুর সিকরি। এখন এইটা না পাহাড়ের উপরে উঠতে হবে অনেকটা, তো ওখানেই তো বলেছিলাম 1.5 কিলোমিটার। এই দেখো পাহাড়েতে উঠছি এখন। रॉयल गेट की तरफ से, जो अकबर बादशाह ने अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए बनाया था, ये रॉयल पैलेस। अच्छा, इधर से रॉयल गेट, रॉयल लोगों का एंट्री होता है। आज भी जो गाइड के संग आता है, वीआईपी गेट बोलते हैं इसको। इस वीआईपी गेट से एंट्री वीआईपी लोगों को होता है, जो गाइड के संग आता है, जैसे आप आए हो। सैनिक रहते थे, उनकी व्यवस्था यहाँ रहने की, खाने की यहाँ व्यवस्था होता था। यहाँ मिलिट्री लोग, तो सेना होती थी,
उनके लिए। इसको बोलते हैं बादशाही गेट, बादशाही गेट। बादशाही गेट, किंग गेट। इस टाइम आप चल रहे हो। आप एंट्री कर चुके हो बादशाही गेट पर। आज अकबर के आने के लिए और आम जनता के लिए बुलंद गेट, जो अभी आपको ले जाऊंगा। आ जाइए इधर, आ जाइए, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दूँ। आ जाइए, आप ही आ जाइए। ये देखिए, ये फतेहपुर सीकरी, ये फतेहपुर है, सीकरी अलग है। ये फतेहपुर में आई जो किला बना हुआ है, ये 450 साल पुराना है, ताजमहल से 100 साल पहले। ठीक है, यहाँ पर 450 साल पहले एक पहाड़ था और पहाड़ पर एक कुटिया बना था जिनका नाम था हजरत शेख सलीम चिश्ती। उस 450 साल पहले यहाँ पर अकबर बादशाह का राज था। अकबर की 3 वाइफ थी, तीनों धर्म से थी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। पहली रुकैया, दूसरी मरियम, तीसरी जोधाबाई। 3 वाइफ थी, तीनों वाइफ से एक भी औलाद नहीं था। अकबर के औलाद नहीं था तो अकबर बहुत परेशान था, पूरे दुनिया में डोला, मन्नत मांगा, कहीं से भी मन्नत पूरा नहीं हुआ। लास्ट में आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है, ज्वाला मंदिर, वहाँ गया, वहाँ भी मन्नत मांगा, वहाँ पर सोने का चक्र चढ़ाया, वहाँ भी उनका मन्नत पूरा नहीं हुआ। उसके बाद एक सपना होता है वहीं आंध्र प्रदेश में कि आप कहीं भी चले जाइए, आपका मन्नत पूरा नहीं हो सकता। आपको मन्नत पूरा करना है तो फतेहपुर सीकरी जाइए, वहाँ पर सूफी संत एक फ़कीर बाबा रहते हैं जिनका नाम सलीम चिश्ती है। वहाँ जाके मन्नत पूरा कीजिए। अकबर और जोधा यहाँ पर आए, फतेहपुर सीकरी आए, यहाँ पर बाबा के इस पहाड़ पर आए, पहाड़ पर बाबा के पास गए। कुछ नहीं था पहले, सोना नहीं चलता था, सोना पहले पैसा नहीं चलता था, सोने की असरपिया होता था, असरपिया देने के लिए बहुत कुछ था। पर अकबर एक शॉल, एक चादर लेके आया बाबा के ऊपर, बाबा को पहनाया, बाबा से दुआ किया कि बाबा एक मेरे हक में एक दुआ कर दीजिए औलाद के लिए, औलाद के लिए। उन्होंने औलाद के लिए दुआ किया। 1 साल बाद उनके एक बेटा होता है जिसका नाम सलीम चिश्ती ने अपने नाम से लिखा, सलीम। बड़ा हुआ जहांगीर, तख्त पर बैठा ना तो उसका नाम हुआ जहांगीर। जहांगीर माने सारे जहां का बादशाह। अकबर के यहाँ पर लाल हुआ तो अकबर ने अनाउंस करा कि पूरे फतेहपुर सीकरी को लाल पत्थर से सजा दो। पूरा फतेहपुर अपना लाल पत्थर से सजाया गया। सीकरी अलग है, फतेहपुर अलग है। ये आप खड़े हो फतेहपुर में, यहाँ पर जमा मस्जिद बना है, बुलंद दरवाज़ा बना है, बादशाह गेट है, अनारकली का सुरंग है, लेडीज समाधि, जेंट्स समाधि और 3 कूलर जो अकबर ने तीनों रानियों के लिए बनाया। 250 कैंडल लैम्प जो अकबर ने बनाया। सामने भी वहाँ सामने एक मज़ार है वाइट मार्बल पे जिनका नाम है सलीम चिश्ती। आज भी लोग आते हैं, आज भी लोग आते हैं, अपना मन्नत मांगते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं। आज भी यहाँ पर ये मनोकामना 100% आपका विश कोई सा भी हो, मन्नत औलाद के लिए, परिवार के लिए, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम के लिए, बिजनेस के लिए, घर समस्या के लिए, वो भीतर आपको वो प्रसाद जाता है। आप जो भी मांगे, एक धागा होता है जिसमें 3 गांठ बनता है। पहले गांठ पे पहला विष होता है, दूसरे गांठ पे दूसरा विष होता है, तीसरे गांठ पे तीसरा विष होता है। 3 से ज़्यादा गांठ नहीं बांधे उस धागे में, सिर्फ 3 ओनली। हस्बैंड वाइफ शेयर कर सकते हो, दूसरे को नहीं बताना होता। ठीक, आप आ जाइए। देखो ये अभी पहले हम बुलंद दरवाजा ले जाएंगे, उसके बाद में ले जाएंगे। पहले बुलंद दरवाजा। এই দেখো বন্ধুরা, এখানে একটা কুয়া আছে, কুয়াটা অনেক গভীর। ঠিক আছে, এখানে আগেকার দিন 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, वो इसी जगह का जहाँ आप खड़े हो, पहला गिटार बजा के जो पहला गाना हुआ था वो इसी जगह का। अच्छा, बर्दिश का। और जो फाइट हुआ था वो सामने का है जामा मस्जिद का। हो जाता है तो वो फतेहपुर सीकरी आता है, बाबा के यहाँ मन्नत मांगता है। जब उसका मन्नत पूरा हो जाता है तो अपना एक ठोक के जाता है, गुड लक, इसको गुड लक बोलते हैं। ऊपर वाला देखिए सबसे बड़ा वाला, लॉर्ड कर्जन 1905 में लॉर्ड कर्जन का घोड़ा बीमार हो गया, जो ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नर थे, उनका घोड़ा बीमार हो गया। उन्होंने भी मन्नत मांगा, जब उनका मन्नत पूरा हो गया तो उन्होंने लोहार से जाकर बड़ा कर चढ़ाया। इसको देखिए, आज भी ये बड़ा चलता है।
ये देखिए एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा जिसको कहते हैं बुलंद दरवाजा। ये अकबर ने 1570 में गुजरात जीत हासिल की थी, उसकी खुशी में इसको यादगार निशानी बनाया। सबसे बड़ी जीत थी इसकी। ये 12 साल में बनके तैयार हुआ। 1570 में स्टार्ट हुआ, ये 1582 में ही कंप्लीट बनके तैयार हुआ। इसका हाइट 176 फीट है। यहाँ पर खड़े हुए 136 फीट, वहाँ से खड़े हुए 176 फीट। ठीक है, ये 52 सीढ़ी होता है। 90 फीट ये चौड़ा है। 3 तरफ इसका कुरान का आयत उतरा है। इसका कॉपी ताजमहल में उतारा गया है। इसी का कॉपी 3 कुरान का है ना उसके। ये वाइट मार्बल से सजाया गया है, लाल पत्थर से बना है। वाइट मार्बल होता है वो राजस्थान मकरानी में पाया जाता है। तो ये लाल पत्थर होता है हमारी यही यूपी यहाँ पर पहाड़ पे मिलता है, फतेहपुर सीकरी गाँव में। ठीक है, आज देखिए रात में लेट हो जाए तो यहाँ ठहरे, सवेरे प्रसाद लेके जब यहाँ पर जाए। ये 52 सिटी होता है। ये आम जनता के लिए गेट बनाए गए हैं, आम जनता के। ऐसे ही पूरा बाउंड्री एक 9 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। पूरा बाउंड्री अभी आगरा गेट से आए ना, ऐसे ही 9 दरवाजे हैं। अभी दिखाई नहीं दे रहा कोहरे की वजह से। एक सामने एक महल और है जिसका टोटल मन का महल, जो अकबर के एक मंत्री थे, उधर सामने आ जाइए। शेख सलीम चिश्ती बाबा थे ना, जो गरीबों को वहाँ जो सारा चढ़ावा चलता था वो यहाँ बैठाल के गरीबों को खिलाते थे। आज भी जिसका मन्नत पूरा हो जाता है तो खुशी से फतेहपुर सीकरी आना चाहता है और वो बाबा गरीबों को खिलाना चाहता है तो वो आज भी यहाँ खिलाते हैं जिसका आना होता है। ये भंडार कर सबका यहाँ मन्नत पूरा होता है। ये देखिए पहले का जेल होता था, ये सामने वाला पहले का जेल होता था। यहाँ पे वो सामने आप टावर देख रहे हो, वहाँ पर एक चौकीदार बहुत सिक्योरिटी हो जाता था। जब अकबर आते थे तो अनाउंस करता था, ढोल नगाड़े बजते थे। आज भी बाबा का 16वीं पीढ़ी जिंदा है। आज भी यहाँ पर वही शाही परिवार की तरह, शाही रिवाज की तरह आज भी वही प्रोग्राम होता है। जब वो आते हैं तो नगाड़े ढोल बजते हैं। जो होता है जिस जमा मस्जिद बाबा के कहने पे बनाया अकबर ने, या तो बाबर ने बनाया वो बाबरी मस्जिद जो विवाद हुआ था अयोध्या में, या वो फर्स्ट मस्जिद था। सेकंड मस्जिद जिस जमा मस्जिद अपना यहाँ फतेहपुर सीकरी 14 साल राजधानी रहा। फतेहपुर सीकरी अकबर का 14 साल राजधानी रहा। अकबर के पानी ना होने की वजह से, पानी पीने का पानी नहीं था तो इस राजधानी को दिल्ली ले जाना पड़ा। आगरा भी लाया वो, और पाकिस्तान लाहौर पहले इंडिया में था वहाँ भी गया, वहाँ कहीं न रहा। फिर लास्ट में यहाँ होता है। पहले जो फतेहपुर सीकरी अपना हिंदुस्तान का राजधानी है दिल्ली, पहले हिंदुस्तान का राजधानी फतेहपुर सीकरी था, कैपिटल अपना फतेहपुर सीकरी। लेकिन ये जमा मस्जिद और शाहरुख खान में जो मार लगा था ना वो भीतर का होता है। अच्छा आप चलने जाते हो भीतर, आपको दिखाते हैं। এই গেটটা কি সুন্দর দেখো, এত সুন্দর লাগছে না এখানে। আমি তো অনেকগুলো রিলস আর ফটো তো তুলবই। কি দারুণ জায়গাটা না, দেখো কি সুন্দর, পুরো এক লেভেলে আছে। जमा मस्जिद अकबर बादशाह ने यहाँ नमाज पढ़ने के लिए बनाया। आज भी 450 साल हो गए इसको बने हुए। आज भी यहाँ 5 टाइम का नमाज होता है। आज भी यहाँ ये देखिए पहले का कोठरी है, ये अकबर ने अपनी रानियों के लिए बनवाया। जो मोमनन रानी थी वो यहाँ नमाज पढ़ती थी, और जो जेंट्स होते थे वो यहाँ नमाज पढ़ते थे। ये देखिए आप 6 गेट दरवाजे देखिए, आपको देखने में आपको छोटा बड़ा लगेगा पर ये एक बराबर है। इसका उद्देश्य ये है कि बाबा के यहाँ पर जो भी आता है कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर होता है। जो बाबा अपनी नज़रों से देखते हैं ना दूसरे को, सब बराबर देखते हैं। यानी कि गरीब की पहले देखेंगे, राजा को बाद में, राजा को गरीब बाद में, ऐसा कुछ नहीं। ये वो है 6 दरवाजे का उद्देश्य दिया गया है आप लोगों को कि ये सब बराबर के दरबार हैं, और मेरे दरबार में जो भी आया सब बराबर है, मेरे लिए सब मेरा शिष्य है। ठीक है। इसके बाद में देखिए लाल पत्थर से बनाया गया, वाइट मार्बल से सजाया गया बहुत अच्छी तरह से। और पहले इसका सजावट और भी अच्छा था। अकबर के टाइम जब ये बना था तो यहाँ सोने से इसमें झूमर था, बहुत कुछ था इसके अंदर। झूमर सोने से सजा हुआ था। जब अकबर के बाद जब हुकूमत आया, जब लास्ट जो हुकूमत के जो शहंशाह थे बहादुर शाह जफर, उनके बाद एक हुकूमत आया अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश हुकूमत, वो सारा यहाँ से सोना उतार के ले गया। उसके बाद में यहाँ कुछ नहीं आया। जैसे हम बोलते हैं ना हमारी इंडिया सोने का चिड़िया था, वो सारा सोना ले गया, पूरा चिड़िया ही ले गया। हमारे पास पैर रह गए, कुछ नहीं। देखिए आ जाइए भाई साहब एक बात पूछोगा। मेरा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह ये है सामने वाइट मार्बल वाली। ये भी लाल पत्थर से बना था। जब जहांगीर बादशाह को मालूम पड़ा कि मैं इनकी दुआ से हुआ हूँ तो लाल पत्थर को उठाकर अपने मामा से कहकर जो मकरानी में मार्बल होता है ना, वहाँ से यहाँ मंगाया, फिर इसको आर्किटेक्चर के द्वारा बनवाया। ये इसी को कॉपी करके ताजमहल बनाए हैं। ताजमहल से 100 साल पहले ये बन चुका है।
3 कूलर अकबर बादशाह ने 3 कूलर बनवाए अपनी रानी के लिए। 3 कूलर। पहले क्या था, लाइट नहीं होता, 450 साल पहले इलेक्ट्रिक नहीं था, तो अकबर ने 3 कूलर न्यूट्रल कूलर बनवाए बगैर लाइट। जोधा के लिए, मरियम के लिए, रुकैया के लिए। इसको जनाना महल बोलते, लेडीज कंपाउंड। यहाँ तीनों रानी बैठ के मीटिंग किया करती थी, जोधा, मरियम, रुकैया। तो तीनों रानी एक दूसरे का फैसला सुनाते। ये वो जगह है जो आज भी यहाँ से हवा आता है। इसके पीछे जंगल होता था, उसके बगल में मोती झील होता था। तो मोती झील आज सूख गया है। फोर्ट जाता है 40 किलोमीटर अंडरग्राउंड, और आगरा फोर्ट से दिल्ली फोर्ट के लिए जाता है, और दिल्ली फोर्ट से लाहौर फोर्ट के लिए जाता है। 3 जगह जाता है। ये 300। पहले क्या होता था, राजा महाराजा होते थे, खुफिया रास्ता बनाते थे, जैसे कि कोई दूसरा राजा उस पर हमला न कर दे तो इस रास्ते से निकल जाए। ये वो जगह है। आज भी ये सुरंग वहाँ तक जाता है, आगरा तक, ठीक है। उसके आपने एक मुगल आजम मूवीज़ देखा था जिसमें अनारकली को चुनवा दिया गया था। ये वही रास्ता है जहाँ पर अनारकली को चुनवा दिया गया था, पर ऐसा नहीं है। अनारकली को यहाँ से निकाल दिया गया था और अनाउंस कर दिया था कि हम अनारकली को चुनवा देंगे, क्योंकि जो जहांगीर बादशाह थे अकबर के बेटे थे। अनारकली की वो एक नौकरानी की कली अकबर ने चाहते थे कि नौकरानी महारानी बने, इसलिए इस रास्ते से निकाल दिया और अनाउंस कर दिया हमने निकलवा दिया। सर वापस इधर से चल रहा है। लोग आज भी जिंदा है जिनका 16वीं पीढ़ी चला रहा है। इसमें चिश्ती चादर जैसा भगवान ने दिया है, बड़ा चढ़ाएंगे, मीडियम चढ़ाएंगे, छोटे चढ़ाएंगे, आपका मन है। दरबार में खाली कोई नहीं जाता है, बच्चों के नाम से सब लोग करके जाते हैं। तो चादर वहाँ लोग चढ़ाते हैं अपने नाम से, परिवार के नाम से। कुरान का लिखा वाला होता है, ये चादर बड़ा वाला होता है। चादर मीडियम चढ़ाते, गरीब लोगों को शादी में बांटते हैं। ये चादर मीडियम होते हैं, मन आपका। और चादर और बड़ा चढ़ाना चाहेंगे, ये बड़ा वाला। सबके अलग अलग हदिये होते हैं। चादर 1100 का होता है। चादर मीडियम चढ़ाएंगे आप लोग 751 का होता है। उससे बड़ा चढ़ाएंगे आप लोग, बड़ा वाला 2100 का होता है। बड़ा चढ़ाएंगे 51, तो आपका मन है, जैसे भगवान ने आपको। ভাই একটু রোদ রোদ বেড়াচ্ছে, একটু ফটো তুলে দিবি একটা ভালো দেখে। একটাই আমি এখন আছি ফতেপুর সিক্রিতে। এই যে তোমরা দেখে নাও ফতেপুর সিক্রিটা। এই এতক্ষণে রোদ বেরোলো, এতক্ষণ সব পুরো কুয়াশাতে ভর্তি ছিল। এখন ফতেপুর সিক্রি থেকে মানে বাদশাহী গেট থেকে আমরা এখন বেরিয়ে গেছি। আমরা একটা কেল্লার দিকে যাব, ওই যে কেল্লাটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ভিতরে গেলে এখানে টিকিট কাটতে হবে, যে আমরা টিকিট কাটছি 50 টাকা করে এখানে টিকিট। এখানে এন্ট্রি করছি আমরা। वो जो की हार वाली ओ खरीद लो। ये नहीं जाएगा पर तुम्हारा, ये नहीं जाएगा। क्या है इतना चादर वगैरह उनको दबाव बनाते हैं, उनका जो उल्टा सीधा काम है, इसलिए वो यहाँ अलाउड। इधर से जाइए, इधर से, इसलिए वो यहाँ अलाउड नहीं है। ये रोक देते गेट पे, उनका फर्जी काम है। वो कोई गाइड नहीं है, लब के हैं वो। यहाँ आपको मिलेगा ओरिजिनल गाइड। इसके এখানেও একটা গাইড আমাদের পেছন ছাড়ছে না। ভাবছিলাম এখানে নেব না, কিন্তু ও পেছন ছাড়ছে না, মনে হচ্ছে ওকে নিতেই হবে। ওখানে তো 200 টাকা নিয়েছে, যদিও বা অনেক সব কিছু গল্প আমাদের শুনিয়েছে। ভালো, চলো এইটা নিয়ে যাই, এটা দেখো, দেখতে থাকো তোমরা। उनके सारे एनिमल बनते थे, जो गुड एनिमल थे, वफादार अच्छी नस्ल के, वो यहाँ बनते थे। और जो वैसे एनिमल थे वो आउटसाइड बनते थे। जो अच्छे थे, पानी लाने का काम करते थे, उनके रखवाली, उन पे बैठ के जाते थे, वो यहाँ सारे बनते थे चारों। इस जगह को बोलते हैं अस्तबल। और ऊपर जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, गोल गोल खूंटे, उनमें वो धूप से बचने के लिए तिरपाल बनती थी। यहाँ लोग रहते थे उनकी देखभाल करने के लिए, जिससे कि कोई घोड़ा मतलब कोई परेशानी में आपस में लड़ जाएं या किसी की बीमार होता था तो उनका ट्रीटमेंट वही करते थे। और जो कोठरी दिखाई दे रही है आपको सामने, उनमें उनका सामान इकट्ठा होता था, कट्टे आते थे, अंदर स्टॉक कर दिए जाते थे। उनमें अकबर के टाइम में लाइट नहीं थी, फूल पास दिए ऊपर सारे में, उनमें से रोशनी आती थी। आप देखना चाहो तो वो कोठरी देख सकते हो।
देखिए आइए, ये बोलते हैं बीरबल का महल। बीरबल जो अकबर के, आपने नाम सुना होगा, अकबर के सलाहकार थे, अकबर उन्हीं की सलाह से सारे काम करते थे। ये उनका महल ऐसे बोलते हैं बीरबल हाउस। वैसे वो हिंदू थे, उनका नाम भजनलाल था बीरबल का, मगर वो सबसे खास मंत्री थे उनके बीरबल। आप अंदर से महल को देख सकते हैं, सारी अच्छी अच्छी डिजाइनें महल के ऊपर पर्दे लगा दिए जाते थे पहले उस टाइम पर। यहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता ये था, क्लोज कर दिया, रास्ता पीछे से। কারুকার্যগুলো একবার দেখো কি সুন্দর কারুকার্য। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए बनाते हैं, इसमें दीपक रखते थे वो दरवाजे रोशनी के लिए। रोशनी होती थी उस टाइम पर, लाइट नहीं थी, फैन वगैरह नहीं थे, पंखे वगैरह, खुली हवा आती थी चारों तरफ से। इसे बोलते हैं बीरबल का पैलेस, बीरबल हाउस। जो ऊपर जाने का रास्ता था उस टाइम, ये गेट अभी लगाए 3 साल पहले, अभी क्लोज कर दिया। इधर क्या है? ये आउटसाइड है भैया, गांव जाने का रास्ता है। मस्जिद है, नगीना मस्जिद, नमाज होती है। इधर से लोग गांव जाते हैं। इधर से हाथी आते थे, अकबर के हाथी गेट बोलते हैं। हाथी आते थे पानी लेके, पानी का काम करते थे, बगल में वहाँ से पानी लाते थे, यहाँ पानी आता था, यहाँ से ऊपर आता था। वो मस्जिद है नगीना मस्जिद। इधर सिक्योरिटी गार्डों के लिए कमरे बने थे, इसमें सिक्योरिटी सैनिक थे, वो यहाँ रहते थे। एक जगह आपको दिखाई दे रही है, इधर मीना बाजार लगता था, हफ्ते में एक दिन लगता था मीना बाजार। सारी रानियां यहाँ से सामान खरीदती थी श्रृंगार का। 3 रानियां थी अकबर की, जोधाबाई, मरियम, रुकैया बेगम। एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन। एक गोवा की थी, जोधाबाई जयपुर की थी, और जो मरियम रुकैया बेगम थी वो तुर्की की रहने वाली थी, मुस्लिम रानी। इधर मीना बाजार लगता था उनका। और ये जोधाबाई का महल था। गर्मियों में जोधाबाई ऊपर रहती थी। ये जालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें से ठंडी ठंडी हवा आती थी। गर्मियों में जोधाबाई ऊपर रहती थी, नीचे उनके सिक्योरिटी गार्ड रहते थे। इधर जोधाबाई रहती थी गर्मियों में। ये गर्मियों का उनका पूरा जालीदार कमरा है। ये उनका स्विमिंग पूल था नहाने का। इसमें 3 रानियाँ नहाती थी, पर्दे लगे थे उस टाइम पर, यहाँ केवल लेडीजों की एंट्री थी। ये जोधाबाई का बात वो था स्विमिंग पूल नहाने का। ये जो आपको दिखाई बोलते हैं मरियम पैलेस। इसमें 3 कमरे हैं। हाँ, इसे बोलते हैं पंचमहल। पंचमहल बोलते हैं। इसमें टोटल 176 खम्भे हैं। सबसे ज़्यादा खम्भे नीचे हैं 96, फिर सेकंड फ्लोर पर 84, फिर थर्ड फ्लोर पर 42, फिर 38 और फिर 4। टोटल 176 पिलर हैं इसमें पंचमहल पर। ये इसलिए बनवाया था, जोधाबाई जो थी हिंदू वाइफ, वो करवा चौथ का चांद देखती थी शाम को। अच्छा। और जो मुस्लिम वाइफ थी रुकैया बेगम, वो ईद का चांद देखती थी। और जो गोवा की थी क्रिश्चियन वाइफ मरियम, वो स्टार्स देखती थी ऊपर जाके, जो क्रिश्चियन लोग देखते हैं स्टार्स, वो देखती थी। और अकबर फ्री टाइम में ऊपर जाके हवा खाते थे, पूरा फतेहपुर सीकरी देखते थे इसके ऊपर से। 3 रानियों के महल इसके ऊपर से दिखते थे। इसे बोलते हैं पंचमहल। आप फोटो ले लो इसका, अच्छा था पंचमहल। अकबर के टाइम में लॉक वगैरह ताले नहीं थे, अपना खजाना यहाँ रखते थे वो छुपा के। और जोधाबाई जो थी वो इसमें आँख में चोली का खेल खेलती थी, छुपा छुपी का। उस तरीके से बना हुआ है। और ये ज्योति की छतरी है। यहाँ अकबर के ज्योति थे, पंडित पुरुषोत्तम दास शर्मा जिनका नाम था, वो यहाँ बैठ के ज्योति का काम करते थे। अकबर की भविष्यवाणी वही करते थे। इस पर जो डिजाइन दिया है वो जैनी धर्म का डिजाइन है, जैन लोग जो होते हैं। ये लॉकर है खजाना रखने के, यहाँ तक जैसे स्टोन रख देते थे ऊपर से, किसी को पता ना चले, ऊपर सामान रख देते थे। इसे बोलते हैं खजाना महल, खजाना रखने का। आ जाइए, 3 कमरे हैं इसमें, 1 2 3। এটা ফটো তুলতে হবে। चारों तरफ आपको क्रॉस के निशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यहाँ गेम होता था चौसर का, लूडो। गोटियों की जगह पर दासियाँ खड़ी होती थी। अकबर कहते थे 2 कदम पीछे तो पीछे, 2 कदम आगे तो आगे हो जाती थी। इस जगह को बोलते हैं चौसर खेलने की जगह। यहाँ राजा रानी बैठते थे बीच में, चारों तरफ दासियाँ खड़ी होती थी। सामने दीवान आम था अकबर का, वहाँ आम लोगों के लिए दरबार लगता था। अकबर वहाँ बैठते थे मिडिल में, जो आम लोगों की समस्या होती थी वहाँ बैठ के सुनते थे। इधर अकबर का मदरसा चलता था, स्कूल। उस टाइम पे बच्चे पढ़ते थे दास दासियों की, उनमें कुछ दास पढ़े लिखे थे, वो उन बच्चों को पढ़ाते थे। इधर उनका स्कूल चलता था, मदरसा। अकबर ने बीच में तानसेन बैठ के गाना गाते थे। अकबर वहाँ सामने बैठ के सुनते थे ऊपर,
इधर तानसेन गाना गाते थे, इसे बोलते हैं तानसेन के गाना गाने की जगह। जो उनके नवरत्न थे तानसेन, वो यहाँ बीच में बैठ के गाना गाते थे। परदेश पिक्चर के 2 सॉन्ग हुए थे, 2 दिल मिल रहे हैं, नहीं होना था लेकिन हो गया, वो इसी के ऊपर शूट हुए थे दोनों सॉन्ग। इसे बोलते हैं तानसेन के गाना गाने की जगह। और ये सर ये मुस्लिम रानी का महल था, तुर्की की रहने वाली रुकैया बेगम, उनका महल था, छोटा सा कमरा था। घंटे अकबर तख्त। नॉनवेज खाना बनता था। आगे। और ये वेज किचन है जोधाबाई की, वेज। अरे तुम सुनती रहो। जो जयपुर की रहने वाली थी, उसमें वेज खाना बनता था उनके। ऊपर झुमकों की डिजाइन है, झुमकों की डिजाइन कानों के झुमके होते हैं, उनकी डिजाइन है। 156 तरीके के झुमके हैं दोनों तरफ, उधर भी और इधर भी। जोधाबाई इस तरीके के झुमके पहनती थी कानों के, सारे डिजाइन अलग अलग है। इसी प्रकार झुमकों की डिजाइन है। जी जोधाबाई यहाँ रहती थी इसमें ऊपर। फोटो तुल फोटो ले लो। देखने के घरों के जोधाबाई बाहर आके देखती थी, मतलब क्या हो रहा है, मौसम कैसा है। ये टॉयलेट थे उस जमाने के टॉयलेट, उसके अंदर टॉयलेट है, पुराने जमाने के पत्थर के जो होते हैं। বেরিয়ে পড়বো তো, দাঁড়াও একটু ফটো তুলে। ফতেপুর সিক্রি ঘোরা হয়ে গেল, এখন আমরা বাসে করে যাব। বাসে করে গিয়ে তারপর আমাদের প্রাইভেট কার ধরে যাব। এখন আমরা বেনারসের দিকে চলে যাব, আগ্রা যাব ভাবছিলাম, বাট এত ট্রাফিক পুলিশের জ্যাম, ওই জন্য গাড়ি নিয়ে আর টাউন ট্রাফিকের জ্যাম, ওই জন্য আর গেলাম না, যাচ্ছি এবার। ফতেপুর সিক্রি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি, নেক্সট ব্লগে দেখতে পাবে আবার কোথায় গেছি। টাটা, বাই বাই।